नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ति स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव नियुक्त निराकार। પરમાત્મ પ્રકાશ આચાર્ય ભગવાન યોગિન્દુ દેવ રચિત પરમાત્મ પ્રકાશનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં ગાથા 184 બીજા અધિકારની ગાથા 184 સુધી સ્વાધ્યાય પૂરો કર્યો છે. આજે આપણે ગાથા 185 લઈએ છીએ. સળંગ ગાથા 316. આ ગાથાના ઉपोद्घातમાં કહે છે कि आगे जीव के कर्म के वश से भिन्न भिन्न स्वरूप जाति भेद से होते हैं, ऐसा निश्चय करते हैं. गाथा 185. लोकः विलक्षण कर्मवश अत्र भवान्तरे आयाति आश्चर्यं किं यदि अयम् आत्मनि स्थितिः अत्रैव भवेन पतति. ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે વિલક્ષણનો અર્થ બહુ વિસ્તૃત અર્થ કરે છે કે 16 वाणी के सुवर्ण की तरह केवल ज्ञान आदि गुण कर समान जो परमात्मा तत्व उससे भिन्न जो परमात्मा तत्वથી જુદું એમ વિલક્ષણ કહેવું છે. અને એમાં સાથે વિશેષણ અને સાથે તુલના એવી રીતે કરી કે 16 આની કે સુવર્ણ की तरह 16 આની સુવર્ણની 16 વલ્લુ સુવર્ણની માફક કેવળ જ્ઞાન આદि गुण कर समान जो परमात्मा तत्व उससे भिन्न जो શું છે એનાથી ભિન્ન તો કહે છે કે લોક અને લોકનો પણ વિસ્તૃત અર્થ કરતા કહે છે કે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શૂદ્ર આદि जाति भेद रूप जीव राशि वह कर्मश कर्म के वश उत्पन्न है, अर्थात जाति भेद कर्म के निमित्त से हुआ है और वे कर्म आत्मज्ञान की भावना से रहित अज्ञानी जीव ने उपार्जन किए हैं. उन कर्मों के अधीन जाति भेद है. जब तक कर्मों का उपार्जन है तब तक अत्र भवांतरे आयाति इस संसार में अनेक जाति धारण करता है. अयम यदि आत्मनि स्थिति अयम यदि आत्मनि स्थितः जो यह जीव आत्मस्वरूप में लगे तो अत्रैव भवे न पतति इसी भव में नहीं पड़े, भ्रमण नहीं करे. किम आश्चर्यम इसमें क्या आश्चर्य है, कुछ भी आश्चर्य नहीं है. શું કહે છે કે 16 वाणी के सुवर्ण की तरह केवल ज्ञान आदि गुण कर समान जो परमात्मा तत्व उससे भिन्न जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जाति भेद रूप जीव राशि वह कर्म के वश उत्पन्न है, अर्थात जाति भेद कर्म के निमित्त से हुआ है और वे कर्म आत्मज्ञान की भावना से रहित अज्ञान जीव ने उपार्जन किए हैं. उन कर्मों के अधीन जाति भेद है. जब तक कर्मों का उपार्जन है तब तक
इस संसार में अनेक जाति धारण करता है। जो यह जीव आत्मस्वरूप में लगे तो इसी भव में नहीं पड़े, भ्रमण नहीं करे, इसमें क्या आश्चर्य है? कुछ भी नहीं। तो गाथा गुजराती में लईए। लोक विलक्षण कर्मवश भमे भवो भव तेम સ્વરૂપે સ્થિત તો અહીં ભવે પડે ન અચરીજ કેમ। અર્થમાં કહે છે કે પરમાત્મા તત્વથી વિપરીત, વિલક્ષણનું અર્થ અહીંયા કર્યો છે વિપરીત, પરમાત્મા તત્વથી વિપરીત લક્ષણયુક્ત એવો આ લોક સમુદાય કર્મવશ વર્તતો આ ભવ પરભવમાં રખડે છે, એક ભવમાંથી બીજા ભવમાં જાય છે। પરમાત્મા તત્વથી વિપરીત લક્ષણયુક્ત એવો આ લોક સમુદાય કર્મવશ, કર્મને આધીન થતો એમ વર્તતો આ ભવ પરભવમાં રખડે છે। આ ભવમાંથી બીજા ભવમાં, બીજા ભવમાંથી ત્રીજા ભવમાં એમ ભવના ભ્રમણ કરે છે। પણ જો આ જીવ આત્મામાં સ્થિર થાય તો આ ભવમાં પણ ન પડે અને કર્મથી પણ ન લેપાય, તેમાં આશ્ચર્ય શું? જો આ જીવ આત્મામાં સ્થિર થાય તો પછી આ ભવના ભ્રમણમાં ન પડે, આ ભવથી પરભવ અને પરભવથી પછી એના પછીનો ભવ ને એમ ભવના ભ્રમણમાં ન પડે અને કર્મથી પણ ન લેપાય, એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી। આગળ કહે છે કે જ્યાં સુધી મન આત્મામાં લીન થતું નથી ત્યાં સુધી સંસારમાં પરિભ્રમણ થાય છે, અનેક ભવ ધારણ કરવા પડે છે। જો અહીંયા મન કહ્યું છે એટલે મન એટલે પોતાનો ઉપયોગ અહીંયા સમજવાનો છે। જ્યાં સુધી મન આત્મામાં લીન થતું નથી એટલે પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં વિશેષપણે એકાગ્રતા કરતો નથી, એમાં લીન થતો નથી, એટલે પોતાના જ્ઞાન દર્શનના ઉપયોગ પોતાના સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા કરતા નથી, ત્યાં સુધી સંસારમાં પરિભ્રમણ થાય છે, અનેક ભવ ધારણ કરવા પડે છે। કેમ કે બારમાં ને બારમાં રહ્યો થકો શુભાશુભ ભાવે વર્તે છે અને એથી એને બંધ પણ એવા પડે છે, આશ્રવને બંધ, અને તેથી ભવના ભ્રમણ થાય છે। પરંતુ આત્મદર્શી થવાથી, આત્મદર્શી એટલે આત્માનું દર્શન કરીને, જ્ઞાન કરીને, એવી શ્રદ્ધા કરીને એવું આત્મદર્શન, આત્મદર્શી થવાથી આત્મા કર્મોને ઉપાર્જન કરતો નથી અને તેથી ભવમાં ભ્રમણ પણ થતું નથી, એમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી। જેને સંસાર અસાર જણાયો છે તે જીવ સંસાર, શરીર અને ભોગોથી વિરક્ત થઈ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ તથા કસાયનો ત્યાગ કરી આત્મભાવનામાં અત્યંતપણે તલ્લીન થાય છે, તત્પર થાય છે। તેથી આત્મભાવનાના બળથી સંસાર પરિભ્રમણનો અંત આવે છે। તો એ રીતે 185મી ગાથા છે। આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી એનો વિસ્તાર સમજીએ। પરમાત્મ પ્રકાશ પ્રવચન વર્ડ ટુ વર્ડ, ભાગ 8મો, એના પાના નંબર 163। परमात्मा प्रकाश 185 गाथा चलती है, 184 थी ने, 184 में ऐसे कहा कि कोई कठोर वचन आदि प्रतिकूल कहे तो उस समय में परमात्मा स्वरूप जी देह में विराजमान है, विराजमान है साक्षात। कौन परमात्मा? हाँ परमात्मा है ना, आगे आ रही। परमानंद स्वरूप इस देह में विराजमान,
परम ब्रह्म। यहाँ शहर में आया था ना निश्चय स्व, तो स्व कौन? वो बात यहाँ कि परमानंद स्वरूप आत्मा वो स्व है। हाँ। शरीर नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, कर्म नहीं, पुण्य नहीं, पाप का भाव भी नहीं, एक समय की पर्याय भी नहीं। પરમાનંદ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા એનું ધ્યાન કરવું। પ્રતિકૂળતાના સમયે કર્મનો ઉદય આકરો આવે, શરીરમાં રોગ હોય, બાહ્યમાં પ્રતિકૂળતા हो, એ સમયે સ્વરૂપ ચૈતન ભગવાન देह में विराजमान अस्थि पदार्थ है, शुद्ध विज्ञान आनंद घन। એનું ધ્યાન કરવું, એના પર વલણ કરવું એમ કહે છે। જંજભાઈ આવું ઝીણી વાત ભાઈ ભૈયાની। હા। प्रतिकूलताना समये धर्मात्माए क्या करना कि अपना परमानंद स्वरूप शक्तिए स्वभावे परमानंद स्वरूप आत्मा तेना तरफनो झुकाव करो, तेना सन्मुख थવું એમ કે છે। ये सन्मुख कौन थई सके? ये सन्मुख कौन हो सके? जिसने पहले ये आत्मा परमानंद स्वरूप सम्यक दर्शन में, अनुभव में, प्रतीत में आया हो। समझ में आया? दीठ मगेराते कहूं तो ना, दीठ मगेराते कहूं तो मार्ग जिसने दिखा है, धौल में पाठ है, धौल है ना, जय धौल, धौल महाधौल, उसमें पाठ है कि आप मार्ग जो आत्मा पुण्य पाप का राग से भी भिन्न અને अपने पर्याय में पर्यायवान का अनुभव जिसने किया है, एने मार्ग दिखा है कि आप मार्ग है आत्मा का। हाँ। ये दिठ मगे मार्ग जो दिखाएगा आत्मा आनंद स्वरूप, दया दान व्रत भक्ति आदि ना परिणाम हो तो सब विकार, वो दृष्टि का विषय नहीं, ये आत्मा में नहीं। एवो जी ऐसा भगवान परमानंद प्रभु देह में देह से भिन्न विराजते हैं, देह में देह से भिन्न। एना तरफनो झुकाव जिसने प्रथम किया हो, वो प्राणी धर्मात्मा को प्रतिकूलता का समय ते तरफ का झुकाव करना। समझ में आया? आओ मार्ग है। यहाँ तो हमें विशेष कहते हैं, आगे जीव के कर्म के वश से भिन्न भिन्न स्वरूप जाति भेद होता है। ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने, वैश्य ने, क्षुद्र, वो सब कर्म का जाति कर्म का वश से उत्पन्न होता है। ये आत्मा का कोई स्वभाव नहीं। समझ में आया? ये भिन्न भिन्न स्वरूप जाति भेद होते हैं, ऐसा निश्चय करते हैं 85-100। लो विलक्षण क्रम वसु जिठु भवंतरी चुजुकी जय अपी ठियो जिठु जी भवी न पड़ी। भगवान आत्मा 16 वाणी के सुवर्ण की तरह, 16 वाला कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? 16वां सोना।
इस 16वाना सोना के तरफ भगवान आत्मा है, केवल ज्ञान आदि गुण का समान। हाँ हाँ हाँ, 16वाना सोनू ये है, इस 16वाना का सोना लाख करोड़ अबज हो तो सब सर का 16वाना है। ऐसे भगवान आत्मा। हाँ, सब आत्माओं 16वाना सोना के समान। केवल ज्ञान એટલે पर्याय की बात नहीं, केवल पर्याय ये नहीं, केवल ज्ञान, एकिला आनंद, एकिली शांति, स्वस्थता, प्रभुता, ऐसा केवल ज्ञान आदि गुण कर समान। ये केवल ज्ञान आदि गुण કરીને બધા आत्माओं अंदर में समान है। समझ में आया? जो परमात्मा तत्व ज्ञान स्वभाव, दर्शन स्वभाव, आनंद स्वभाव, वीर्य स्वभाव, स्वच्छ स्वभाव, ऐसे केवल ज्ञानी आनंद गुण कर समान आत्मा, ये परमात्मा तत्व उससे भिन्न। परमात्मा तत्व परम स्वरूप जी ध्रुव चिदानंद प्रभु, ऐसा अपना आत्मा सम्यक दर्शन का जो विषय, ये स्वस्वरूप एक समान अनंत गुण सहित एक समान स्वर का आत्मा सब है। क्या रहे गणे का आत्मा पूर्णानंद स्वरूप। विकार तो इसमें है नहीं, पर अपनी वर्तमान प्रकट व्यक्त अवस्था दशा इतना भी आत्मा नहीं। परमानंद स्वरूप केवल ज्ञान आदि गुण कर विराजमान प्रभु। अरे केम बैसे पामर प्राणी ने ऐसी प्रभुता की प्रतीति कैसे हो? समझ में आया? अनंत ज्ञान दर्शन आदि अनंत स्वभाव सहित प्रभु सब आत्मा परमात्मा स्वरूप समान है। पण वो है उससे भिन्न ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने, वैश्य ने, क्षुद्र आदि जाति भेद, ये जीव राशि ये परमात्मा तत्व से कर्म से उत्पन्न हुए भिन्न जाति, एक जाति भेद कर्म के निमित्त हुआ है। अपना स्वरूप में ये है नहीं जाति कि भाई आप ब्राह्मण है ना वैश्य है ना, वो तो कर्म का निमित्त से उत्पन्न हुई बाकी भेद जाति है, ये अपना स्वरूप नहीं। कोई के भाई ब्राह्मण की जात हो तो उसको आत्मा का भान हो, तो कहती ये तो कर्म का कारण मिलेली भिन्न भिन्न जाति, ये चैतन्य सोलवना सोना का समान प्रभु उसको तो भिन्न जात है वो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जाति वेद रूप जीव राशि ये कर्म से उत्पन्न है, अपना स्वभाव में ये है नहीं। सम्यक दृष्टि जीव धर्मनी पहली पगथिया प्रथम सीढ़ी, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव अपने को पूर्ण परमानंद माने अनंत गुण आदि सहित समान सरखा आत्मा को मानते हैं। समझ में आया? भाई जाति भेद आदि है ये तो पर्याय का भेद है, तो जानने लायक है, अपनी चीज नहीं। समझ में आया?
ये कर्म आत्मज्ञान की भावना से रहित। अब क्या कहते हैं कि पहली तो वो चीज कही कि अपना आत्मा आनंद ज्ञान दर्शन आनंद सहित सदृश स्वरूप एक समान आत्मा है, उससे भिन्न जाति है ब्रह्मा आदि। ये जाति उत्पन्न क्यों हुआ कि कर्म से हुआ। तो कर्म क्यों उत्पन्न हुआ, समझ में आया। ये कहते हैं देखो, जाति भेद कर्म से निमित्त से हुआ। ये कर्म आत्मज्ञान की भावना से रहित। भगवान आनंद ज्ञान संपन्न प्रभु अतीन्द्रिय अनंत आनंद स्वरूप अनादि से अज्ञानी आत्मा को पर्याय में दुख है। ये कर्मना संगे दुख है, उसका स्वभाव दुख नहीं, उसका स्वभाव तो आनंद है। तो कहा विराजमान आनंद। तो परमानंद स्वरूप में दुख जो गाते हैं ये बुद्धिपूर्वक हो। एक इंद्री से मांडी ने पचेंद्री सब प्राणी असंगनी संगनी वो दुख को वेदते हैं। क्यों कि आत्मा का आनंद का उसमें अभाव है। ये क्या किया, अज्ञानी को आत्मा तो है ही है, पर पर्याय में आनंद का अभाव है। वो कारण दुख को भी है, एकला दुखी है। समझ में आया। अब्जोपति न राजा न देवो ये બધા दुखी है। क्या कि क्यों आत्मा का आनंद का जहाँ अभाव है ત્યાં दुख है। શરાયમાં કહ્યું નથી, મુનિવ્રત ધાર અનંત बैर गृह कुछ, ये दुखी છે। पंच महाव्रत पालने वाला दुखी છે, क्योंकि महाव्रत ना परिणाम राग है ना दुख है। આવી વાત है। क्योंकि જ્યાં आत्मा आनंद प्रभु છે अतीन्द्रिय आनंद, ये अतीन्द्रिय आनंद नो जिसकी पर्याय में अभाव है, इसकी पर्याय में राग ने द्वेष नु दुख वेदन है। समझ में आते हैं। आत्मा जो है पहला परमानंद कहे ना, परमानंद विराजमान अंदर है। ये परमानंद ना आनंद नो अपनी वर्तमान पर्याय में जिसको अभाव है, इसको राग ने द्वेष ना दुख नहीं सद्भाव दिशा है। भगवान भाई એને દુઃખ છે એ સિદ્ધ કિસી રીતે હોતા है। પંચાયત જમે લીધું હતું ને ભાઈ કે અજ્ઞાની प्राणी मोटा राजा हो, देव हो, अब्जोपति हो, ये सब प्राणी एकंदरी प्राणी हो, पृथ्वी अग्नि वायु वनस्पति, ये प्राणी दुखी है। यूं कई रीते सिद्ध किया। અને पंच महावर्त नहीं पालने वाला पर प्राणी आत्मज्ञान नहीं माटे दुखी है। इस सिद्धि केम किया तुमने कि सिद्धि एम किया कि जिसको अतंतर आनंद का अभाव है उसका दुख का सद्भाव है। समझ में आया। अरे भाई भाई आ બધા અબજોપતિ ને કરોડોપતિ ये बेचारा दुखी है। यहाँ तो त्या सुधी दुखी कहा कि अनंत बैर मुनि पना लिया, दिगंबर मुनि हुआ, पंच महाव्रत पाया, समिति गुप्ती ब्रह्मचर्य जाप जीव का शरीर का बाल ब्रह्मचर्य, पर वो बड़ा विकल्प है, राग है, आत्मज्ञान नहीं। त्या
आत्मज्ञान का जहाँ अभाव है ત્યાં आनंद का अभाव है, आनंद का अभाव है ત્યાં दुख का सद्भाव है। ભાઈ ન્યાય સમજાય છે? હા હા હા। प्रभु आत्मा परमानंद प्रभु, इसका जिसको सम्यक दर्शन आनंद का स्वाद नहीं, इसको जिसका परमानंद का व्यक्त शक्ति रूपे तो है, पर व्यक्त में जहाँ सम्यक दर्शन में आत्मज्ञान का स्वाद नहीं, ये सुख नहीं, क्या उसकी बुद्धि में राग द्वेष ने मिथ्या से दुखी है। समझ में आया? शरीर वाणी यहाँ तो जड़ माटी धूड़ है, अंदर कर्म जो है वो अजीब जड़ है, और जो अंदर दया दान व्रत भक्ति का परिणाम होता है कि विकार है, ये भी जड़ है, अचेतन है, उसमें चैतन्यपना का अभाव है, तो उसमें आनंद का भी अभाव है। समझ में आया? मार्ग सूक्ष्म है भगवान, वितरागनो मार्ग, प्रथम सम्यक दर्शन ये चीज कोई अलौकिक चीज है। समझ में आया? चारित्र तो कहाँ, तो पीछे कई दिशा दूसरी है। यहाँ तो प्रथम कैसे के आनंद का अभाव, इतना पंचमावृत पाले, समिति गुप्ती पाले, जावजी ब्रह्मचर्य पाले, हजारों रानी छोड़कर मुनि दिगंबर हो, पर उसको दुख है, क्यों सिद्ध किया कि उसको आत्मज्ञान का आनंद का स्वाद ने अनुभव नहीं है। जिंदगी આવી વાતો છે। અને 50-50 લાખના બંગલા અને સ્ત્રીઓ अनुकूल ने कुटुंब अनुकूल ने सब कहते हैं प्रभु सुन तो सही नाथ एक बार, तेरा स्वभाव तो परम आनंद है न प्रभु, ये परमानंद का स्वाद का जहाँ अभाव, क्या दुख का सद्भाव, दुखी है प्राणी है। समझाई છે कहीं? ये आई कहते हैं कि ज्યાં जो परमानंद प्रभु का अभाव, ત્યાં कर्मની उत्पत्ति करते हैं, ये है ना? क्या कह देखो, कर्म आत्मज्ञान की भावना से रहित है। कर्म क्यों हुआ और कर्म के कारण ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जाति क्यों हुआ? हमारे दुनिया की जात जुदी। ये आत्मज्ञान की भावना से रहित क्या किया? पहली बात तो वो किया कि 16 सवाना सोनू ऐसे परमात्मा अनंत ज्ञान दर्शन आनंद थी परिपूर्ण भरा हुआ 16 सोना समान आत्मा परमात्मा सत्य है, उसको आ जाति आदि क्यों मिला? ब्राह्मण आदि क्षत्रिय आदि जाति, नरक गति देव गति आदि क्यों मिला? कि कर्म के कारण मिला। कर्म क्यों हुआ? कि आत्मज्ञान की भावना से रही थे, जिसको भगवान परमानंद प्रभु उसकी जिसकी दृष्टि हुई नहीं, सम्यक दर्शन है नहीं। समझ में आया? सम्यक दर्शन इतने आत्मा आनंद स्वरूप का स्वाद आना, अनुभव आना, ये सम्यक दर्शन जिसमें नहीं, ये आत्मज्ञान की भावना से रहित है। भाई भाई है कि नहीं?
आत्मज्ञान भगवान आत्मा तो कहा कि परमानंद स्वरूप, एनु जे उसका ज्ञान, उसकी भावना। आत्मज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, परमानंद ने अनंत ज्ञान आदि संपन्न, ये अनंत गुण ની સંપદા વાળો પ્રભુ। એવું સ્નાત है એવું चेतन रूप अनूप अमूर्त सीध समान सदापद मेरो। चेतन रूप अनूप अमूर्त, जिसको कोई उपमा नहीं ऐसा प्रभु। अमूर्त सीध समान सदापद मेरो। ओहो मोह महात्म आत्म यंग, पर स्वरूप की दृष्टि बिना पर तरफ की सावधानी ना मिथ्याद भाव के कारण मोह महात्म आत्म यंग कियो पर संग। मैं तो पुण्य ने पाप ना राग नो संग कियो पर संग। महात्म घेरो, अज्ञान नो घेरो थयो। ज्ञान कवा उपजी अब मोकू, बनारसीदास के छे समयसा नाटक। ज्ञान कवा उपजी अब मोकू, कहूं गुण नाटक आगम केरो। अर्धा कलाक પછી આવે મગનભાઈ, પાછળથી 15 મિનિટ 20 મિનિટ આવે થોડું દેખાડવા। રામજીભાઈ એમ કહેતા હતા, રામજીભાઈ ખબર હોય ને શું કીધું, સમજાણું કાંઈ આમાં? चेतन रूप अनूप अमूर्त सीध समान सदापद मेरो। मोह मोहात्मा कर्म क्यों थिया? मोह पर तरफ नहीं सावधानी, स्वरूप नो असावधानी। भगवान आनंद नो नाथ प्रभु ए तरफ की असावधानी અને પુણ્ય ને પાપ આદિના ભાવ અને એના ફળ તરફની સાવધાની। શુભ શુભ રાગ પુણ્ય પાપ ની સાવધાની અને એનું ફળ, પુણ્યનું ફળ આ ધૂળ પૈસા લક્ષ્મી આબરૂ કીર્તિ, એમાં જેની સાવધાની। રોટલા નથી કારણ પોટલા છે મોટા, કેક પડ્યા અંદર ક્યાં તો મું પીરા જ કરે છે। હે ભગનભાઈ એને આની પાસે પૈસા ઘણા છે, રોટલા ને પોટલા ને મોટલા છે। આવ્યો નતો અમારો દિનેશ ને મનર નો દીકરો આવ્યો હતો, કેન્સર જોવાયો હતો, પૈસા ઘણા છે એની પાસે, તબિયત જોવાયો હતો, વહી ગયો હોવાનું જઈને પછી સ્યો ધંધો છે ને ઓલો શેનો એ કહેવાય, ભંગાર વાસણનો ધંધો, એને શ્યોર ગયો છે જાય ધંધા। કેટલા પૈસા છે એની પાસે, તેના બાપ પાસે 70 લાખ। એના ભાગ્ય તો વળી કહેતો હતો મારે રસિક, એ મહેન્દ્ર તારો ભાઈ રસિક તો કહેતો મારા મામા પાસે કરોડ રૂપિયા છે એમ કહેતો છે। ભેગા રહેશે ને ત્યાં, પણ પૈસા તો છે 70 લાખ તો। હા ધૂળમાં પણ એમાં જાય નથી, મરી ગયો હલવાઈ ને ત્યાં। એ બધા હની પાટિયા બધા ભેગા થઈને બેહારે મોઢા લો। शनिपात समझे ना, वात पित्त ने कफ बहुत तो हो जाता है, शनिपात हो जाता है। एम पागल છે આ બધા। મિથ્યા શ્રદ્ધા, મિથ્યા જ્ઞાન અને મિથ્યા રાગ દ્વેષનું આચરણ એ શનિપાત છે। જગતથી જુદી વાત છે બાપુ। અહીં કે છે આત્મજ્ઞાનની ભાવનાથી રહિત,
આત્મજ્ઞાનની ભાવના સહિત હોય એને કર્મબંધન હોતા નહીં. सम्यक दृष्टि कोई कर्म बंधन, परमार्थ मिथ्यात का बंधन होता नहीं. सम्यक दर्शन हुआ. संकित सैनिक राजा गृहस्थाश्रम में राज में था. हजारों राजा चामर उठाते थे. सम्यक दर्शन पाया. एक चारित्र नहीं, व्रत नहीं, कोई हजी अंदर में रमणता नहीं. सम्यक दर्शन, आत्म अनुभव. सैनिक राजा पर सम्यक पाया. पहले मुनि ने अशासना किया था तो 7वें नरक का आयु बन दिया. पीछे सम्यक दर्शन पाया तो 33 सागर का आयु बंद पड़ा था. अब तोड़कर 84,000 वर्ष रह गया. पहली नरक में छे. अभी सैनिक राजा पहली नरक है नीचे, 84,000 वर्ष की स्थिति में है. ત્યાં से निकलकर पहला तीर्थंकर होगा. जैसा महावीर परमात्मा तीर्थंकर छेल्ले एम आगामी 24 माह पहले तीर्थंकर होगा. सम्यक दर्शन पाया और तीर्थंकर वो रूप जाया. अभी पहली नरक में है. 84,000 वर्ष की स्थिति है तो 80,000 गई तो वर्ष गई 81 वर्ष. बाकी ત્યાં से निकलकर प्रथम तीर्थंकर होगा. चारित्र नहीं, व्रत नहीं, तप नहीं, त्याग, राग का तीव्र त्याग, मिथ्या सहित में अनंतानुमति का त्याग है, पर दूसरा 3 कषाय का राग का त्याग नहीं. पर आत्मानुभव हुआ, आत्मज्ञान किया, वो कारण से उसको मिथ्यात का बंध नहीं पड़ते. मिथ्यात वही संसार, अनंत कारण का, संसार का कारण, उसका बंध नहीं उसको. समझ में आया. नरक में भी 84,000 वर्ष स्थिति है. आयुष बंध गया. ये आयुष पछी अभाव नहीं होता. आयुष बंध गया ना अभाव नहीं होता. जिसका लड्डू बन गया, लड्डू शक्कर घी ने आटा, तो उसे लड्डू बन गया. में से घी निकालकर पूरी नहीं होगी, उसमें से लोट निकालकर रोटली नहीं होगी. ये तो खादे छोड़ के उसको. उसमें थोड़ा घी नाखे अथवा थोड़ा सूखवे, पर लड्डू तो खाना पड़ेगा. एम आयुष बंध गया हो जिसको, ये स्थिति घट गई. 9वें 7वें नरक की स्थिति घट गई, पर नरक का आयुष ना अभाव नहीं हुआ. तो पहली नरक गए पर आत्मज्ञान सहित है अभी ત્યાં. પંચ મહાવ્રત અને સંતિ ગુપ્તીનો વ્યવહાર પાળીને 9મે ગૃહે જાય તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ है ત્યાં. नरक में गई અને सम्यक दृष्टि है. पर सम्यक दर्शन क्या चीज है उसकी खबर नहीं. बस देवगुरु धर्म की श्रद्धा करो, तुम समय हो व्रत ने पाओ, एम सब गप्पा झूठ है. समझ में आया. आत्मज्ञान की भावना रहित अज्ञानी जीव जो आत्मा परमानंद प्रभु, उसका ज्ञान नहीं, उसकी श्रद्धा नहीं, उसकी सन्मुखता नहीं, तो ये भावना से रहित. भावना शब्द सन्मुख नहीं एकाग्रता. समझ में आया. आत्मज्ञान वस्तु भगवान परमानंद प्रभु, उसका ज्ञान અને उसकी एकाग्रता भावना अंदर में. राग की एकाग्रता छोड़कर आत्मज्ञान की एकाग्रता है. ये वास्तविक धर्म है, वास्तविक मोक्ष का मार्ग है. उसे रहित आत्मज्ञान प्रभु, ज्ञानानंद सहजानंद प्रभु, उसका ज्ञान, उसकी सम्यक दर्शन एना रहित, એટલે કે उसकी एकाग्रता रहित.
सम्यक दर्शन ने ज्ञान એ આત્માના એકાગ્રતાનો ભાવ है। व्यवहार रत्नत्रय है वो रागनी एकाग्रताનો भाव है। समझ में आया? ऐसे आत्मज्ञान की भावना से रहित अज्ञानी जीव ने उपराधन की, सम्यक दृष्टि उपराधन की, यही बात लिया ही नहीं हाँ, અહીં તો सम्यक दर्शन ये बंधन का कारण नहीं, અને મિથ્યાત એ જ બંધ का कारण ये सिद्ध करना है। आत्मा अंदर भगवान जे कहीं अरिहंत परमात्मा हुआ, ये सर्वज्ञ ने केवल ज्ञान पाया, ये चीज आई कहां से? कि बाहर से आती है कोई? अंदर में पड़ी है। समझ में आया? जैसे लींडी पीपर होती है ना, छोटी पीपर, तो ये रंग खाली है और चरपराई में अल्प है बाहरी, पर अंदर में शक्ति नी चरपराई तो 64 पेरी है। 64 पेरी समझते हैं? 16 ना 64 घूंटते हैं ना, 64 पेरी बाहर आती है ना। कहां से आए? पत्थर से आए। तो पत्थर से तो लाकड़ा है, पत्थर घूंटे ने कहां से आए? उसमें है। ये छोटी पीपर में 64 એટલે રૂપિયો 16 ना सरपराई भरी है और हरा रंग अंदर में भरा है। ये है वो प्राप्त होता है। समझ में आया? ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा, केवल ज्ञान अनंत आनंद अनंत वीर्य प्रकट हुआ। कहां से हुआ? आत्मा ना स्वभाव में 64 पूर्ण आनंद, पूर्ण शक्ति, पूर्ण शांति पड़ी है। समझ में आया? माथी उसमें से निकाल कर परमात्मा हुआ, तो परमात्मा शक्ति है तो व्यक्ति प्रकट परमात्मा हुआ। समझ में आया? ऐसे आत्मा शक्ति स्वभाव है तो परमात्मा है। उसका ज्ञान रहित जीव, उसका ज्ञान दूसरा ज्ञान किया, शास्त्र का किया, दूसरा भणतर किया, हजारों मानस ने रिजवानी व्याख्या शैली आवड़ी, उसमें क्या हुआ? समझ में आया? आत्मज्ञान रहित अपना चैतन्य भगवान पूर्ण शुद्ध स्वरूप, उसका ज्ञान ने श्रद्धा रहित अर्थात उसका ज्ञान ने अंदर श्रद्धा नी भावना एकाग्रता रहित अज्ञानी है। अज्ञानी जीव ने भाषा ही ली। ज्ञानी ने थोड़ा राग रहते हैं, पर ये अनंत संसार का कारण नहीं। समकीर्ति आत्मज्ञान हुआ पीछे 3 कषाय का राग है, पर वो कहीं अनंत संसार का कारण नहीं। मिथ्या श्रद्धा ने मिथ्या ज्ञान अनंत संसार का कारण है, અને सम्यक दर्शन ने सम्यक ज्ञान अनंत संसार का छेदना का कारण है। अरे आई बातों है। युवा परमात्मा प्रकाश योगेंद्र देव मुनि हुआ है। तीर्थ सवेर में जो समय सार था वो कुंकुंदाचार दिगंबर मुनि 2000 वर्ष पहले। आज दिगंबर मुनि है। 1300 वर्ष पहले योगेंद्र देव वनवास में रहते थे, तो उसका शिष्य था प्रभाकर भट्ट। उसने मैं क्या बनाया? समझ में आया? आत्मज्ञान से रहित, आत्मज्ञान की भावना से रहित है। आत्मा का क्या चीज है उसकी दृष्टि हुई नहीं, भावना क्या से करे? अंदर जे चीज भाषी हो भाड़ी हो तो उसकी भावना करे आ चीज ऐसी है। कोई कहते थे ऊपर देश में है ना, अम्ब पाकते नहीं, कैरी कैरी।
કેરી હતા ને એ કોઈક દેશમાં છે એવું સાંભળ્યું નથી, કેરી પાકતી નથી. પછી આવડા મોટા બોર આવે ને, બોર હોય ને, બોર ક્યાં કહેते बोर, बोरी, बेर, तो उसको कैरी मन ने देखा, अपनी क्या कैरी नहीं क्या बोर, देखा नहीं कभी बोर क्या कैरी क्या, समझ में आया? यहाँ भगवान आत्मा पुण्य पाप का विकल्प से, राग से रहित और परिपूर्ण स्वभाव से सहित ऐसी ज्ञान की भावना बिना, एने भावना किया कर्म पुण्य ने पाप ने अल्पज्ञ दशा की, तो उससे अज्ञानी ने जीव ने उपराधन किए, अज्ञानी ये कर्म उपराजा, ऐसा सिद्धांत किया यहाँ तो। उन कर्मों के अधीन, ये कर्म के अधीन जाति भेद है। हाँ, ब्राह्मण ने क्षत्रिय नहीं तो कर्म ने अधीन जाति भेद है, भगवान आत्मा में है। समझ में आया? जाति भेद है जब तक कर्मों का उपराधन है। आत्मज्ञान एकाग्रता रहित कर्मनी जब तक उपार्जन है तब तक संसार में अनेक जाति धारण करते हैं। ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, सब वो तो कर्म का फल है। जिसको आत्मज्ञान नहीं, आत्मा का भान नहीं, उसने अज्ञानपणे जी उपार्जन किया कर्म, ये कर्म के कारण से जाति आदि मिलती है। भवंतर भवंतर એટલે ભવમાં પ્રખરતે हैं। समझ में आया है ना? तब तक भवांतर आया थी, संसार में अनेक जाति धारण करते हैं। वो जीव आत्मा स्वरूप में लगे, अज्ञात खाती बात, आनंद स्वरूप भगवान उसकी दृष्टि रहित अज्ञानी कर्म उपार्जन करते हैं, उसमें जाति भेद आदि मिलते हैं, भव में रखड़ते हैं, भव में पड़ते हैं, है ना? भवांतर आया थी, भव છે ને, ભવાન અત્ર ભવાંતર આયા थी। अयम यदि ये जीव आत्मानी थी तो आत्मा स्वरूप में थी लगे। अज्ञानी आत्मा स्वभावनी भावना रहित राग में लग्या, पुण्य पापनी क्रिया में लग्या, अज्ञान थी कर्म उपार्जन हुआ। परमात्मा प्रकाश है। दिगंबर मुनि योगेंद्र देव 1300 वर्ष पहले हुआ। जंगल में रहने वाला वन शास्त्रया, वन में बनाया। मुनि तो वन में रहते थे ना, जंगल में रहते थे। दिगंबर मुनि जी आत्मज्ञान ने ज्ञान आनंद, उसको बाई का परिचय उसका है नहीं, जंगल में रहते। भिक्षा माटे आवे गांव में, भिक्षा लेकर चले जाए बस। अंतरना आनंद का स्वाद में दूसरी कोई चीज ऊपर उसकी प्रीति ने रुचि होती। महाव्रत का परिणाम आता है तो प्रीति रुचि नहीं होती, क्योंकि राग है वो। दुख है। आत्मज्ञान बिना जितना राग है ये सब दुख है। અને ધર્મી जीव को भी आत्मज्ञान सहित में भी जितना राग होता है ये दुख है। तो दुख की रुचि नहीं, रुचि तो आनंद की है। आता है राग कमजोरी से, पर वो दुख है। ये पंच महावत आश्रव है, दुख है। हाँ तो कहीं सुन 85 की साल में कितना वर्ष हुआ? 15 ने 33,
50 में 2 कम, 48 वर्ष हुआ। उसमें थे ना हम तो बोटाद थे ना, बोटाद। तो हमारी तो प्रतिष्ठा पहले थी बहुत है ना, तो मानसों तो हजारों आवे व्याख्यान सुन, सारा अपासरा खींचो खींच भर जाए। उसमें तो माई नहीं, पर पीछे शेरी क्या कहते हैं, गली है, गली खींचो खींच मानस। 50 वर्ष पहले की बात है। 48 ने 40 ने 8, 48 वर्ष के पहले की बात है। सभा बड़ी थी तो उसमें ऐसा कहा पहले, वो समय कि जे भाव से तीर्थंकर को तो बंदे ते भाव धर्म नहीं। खबराट 50 में 2 कम बोटाद। अने जे भाव से पंचमहावर्त होता है, ये आश्रय राग है। 48 वर्ष पहले सभा में स्थानकवासी में उसमें थे ना हम तो पहले। तो कहा गड़बड़ाहट हो गई। ओ गड़बड़ाहट करो कि दोनों मारेगा है। समझ में आया? मानसों तो समझता, मानसों तो हमारा तो प्रेम હતો ને। માતા નાની ઉંમરમાંથી લોકો હજારો આવતા, 2000 3,000 માણસ। तो एक साधु बैठे थे, उसको रुचि नहीं है, तो एक હોશે અમારે ન જોઈએ। એનું કઈક માનતું નહોતું। તે માણસો મોટી સભા મારા ગાવ है। जे भाव से तीर्थंकर उत्तर 16 कारण भावना, ये भाव पर बंध का कारण है तो राग धर्म नहीं। तीर्थंकर प्रकृति बंध है तो भाव है, भाव से बनते हैं। तो भाव क्या है? धर्म भाव है। धर्म भाव से बंध होता है, राय है। हाँ। तो समझ में आया? और पंच महावर्त है, ये आश्रम है कि मुनि आत्मज्ञानी, उसमें तो ये बात है ही नहीं। श्वेतांबर में तो शास्त्र में कल्पना बती है, ये बात तो उसमें है नहीं। आत्म दिगंबर संतो यह बात क्या है? समझ में आया? यथार्थ वस्तु की स्थिति क्या है? समझ में आया? तो एक साधु थे, तो कोई माने नहीं, कहीं खबर नहीं। પછી પૂરણ થયા પછી કઈ બેસી રહેવું તો તમારે કેવું? અહીંયા તમારું તમે શું કહ્યું જાણે લોકો માણસ? અને તમે કીધું છે શેઠિયા બધા બેઠા હતા, મોટા મોટા શેઠિયા 50,000 હજારની પેદાશ વર્ષની, કોઈ તમારું માને મફત ના કરો। હા, લોકોને બેહે નહીં ને, એટલે અમારી શ્રદ્ધા બરાબર છે એમ કે ધૂળમાં નથી। ये पंचमहावर्तना परिणाम थी धर्म माने ये मिथ्या दृष्टि, श्रद्धा मिथ्या है। समझ में आया? परूपणा भी ऐसे ही करते हैं, व्रत करो, ऐसा करो तो व्रत से संभव होता है, धूड़े नहीं होता। सुन तो सही, संबर तो अपना आत्मा आनंद का नाद प्रभु उसकी दृष्टि होकर एकाग्र हो, उसका नाम संबर है। क्या ही सुने, ये के तत्व की बात सुनी नहीं। समझ में आया? यहाँ वो कहते हैं अज्ञानी पीछे जब आत्मा की स्थिति, तो पहले क्या आत्मा की भावना रही, उससे कर्म उपरा जा, तो वो कर्म के कारण से जाति भेद मिली। हाँ, हमें आत्मा में स्थित है आत्मा स्वरूप में लगे, स्थित न अर्थ करो। भगवान स्वरूप आनंद अविकारी स्वभाव त्रिकाली भगवान आत्मा का, ये आत्मा में स्थित है, दृष्टि त्या लगी है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि आत्म स्वभाव में लगी है। भले ग्रस्ताश्रम में हो, सैनिक राजा क्या है, नरक में है अभी,
પણ આત્મ સ્વભાવની दृष्टि से आए। और आगामी काले ત્યાં से निकलकर पहला तीर्थंकर होगा। हजी तो 6 महीना पहले इंद्रु आવીને એની માતાને સાફ કરશે, હજી નરકમાં છે। 6 મહિને પહેલે માના ઉદર સાફ, ત્યાં જે મોટા પુરુષ આવે ને મકાન સાફ કરીને વાળે છે ને, આ તો 3 લોકનો ના તીર્થંકર। હા, નરકમાંથી આવવાનું છે। સૈનિક રાજા ઇન્દ્રુ આવીને માતાનું સાફ કરશે। અને 9 મહિના, 6 મહિના, 15 મહિના રતનની વૃષ્ટિ, એ નરકમાંથી નીકળે ની રતનની વૃષ્ટિ। એ પ્રતાપ બધો આત્મ સમ્યક દર્શનનો હે। બાપુ સમ્યક દર્શન શું ચીજ ક્યાં હે उसकी ખબર નહીં લોકોને। હવે બસ આપણે ભગવાનને માનીએ, દેવગુરુ શાસ્ત્ર માનીએ છીએ, વ્રત લ્યો ને તપ લ્યો, એ તારી તરફ ધૂળે નથી શું ને। આવી વાતો। मार्ग तो ऐसा है। કહ્યું છું ને, કહ્યું પદ્મનંદી 25 है ને, પદ્મનંદી આચાર થયા, દિગંબર પદ્મનંદી મહાવનવાસી। 26 છે અધ્યાય, પણ નામ 25 આપ્યું છે, પદ્મનંદી 25 જેને શ્રીમદ રાજચંદ્રે વનશાસ્ત્ર કહ્યું છે। વનશાસ્ત્ર કે મુનિઓ દિગંબર વનમાં લખते थे ताड़पत्रों पर, એને कहीं कोई नहीं पड़ी नहोती। उसमें ऐसा आया एक 26वां अधिकार है, ब्रह्मचर्य का अधिकार है। ब्रह्मचर्य का ऐसा ब्रह्मचर्य का वर्णन किया, ऐसा वर्णन किया कि लोगों ने एक बार तो ऐसे हो जाएगा, आ क्या ब्रह्म नाम आनंद नो नाद प्रभु एमा चरना नाम रमना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। काया से शरीर से स्त्री न सेवना, ये कहीं ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्म नाम आत्मा आनंद नो नाद प्रभु एमा चरना रमना, आनंद का अनुभव करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य। बहुत खेल खुलासा किया। पीछे ऐसा बोला, मुनि दिगंबर संसार वनवासी, ए युवानो, एम लिखा है पाठ है, हे युवानो, मैं जो ब्रह्मचर्य की बात करता हूँ ये तुमके न रुचे तो क्षमा करजो, हूँ तो मुनि जाऊं। જુવાન શરીર હોય લક્ષ જેવું, રૂપાવાળા સાની સ્ત્રી કુટુંબ ને બધું, એને આવું બ્રહ્મચર્યની વાત સાંભળીને હે યુવાનો એમ લખ્યું જ પાઠ છે, મુનિ કહે છે। હો તો આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। ગાથા 185 નો શેષ ભાગ આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું। હવે સુખધામ બોલીએ। जयते